السلام علیکم۔ میں یاسمین خان اور آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ آج ہے 19 جنوری 2025۔ اس کا ویلاگ شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ غزہ کی اور اسرائیل کی جنگ بندی کا معاہدہ ٹرمپ نے کروا دیا ہے۔ تو اس کی جو آج 19 جنوری کی صبح سے اس کی جنگ بندی کا معاہدہ جو اس کے اوپر عمل ہو گیا ہے اور اس کا کام شروع ہو گیا ہے، جنگ بند ہو گئی ہے۔ لیکن باوجود اس کے انہوں نے اس سے پہلے کچھ حملے کیے ہیں جس میں کہ 110 فلسطینی اور شہید ہوئے ہیں۔ 110 فلسطینی جس میں کہ 28 عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں جو کہ شہید ہوئے ہیں۔ تو بچے بلکہ زیادہ 28 بچے ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، ٹوٹل ملا کے 28 گئے تھے۔ تو دوسرا 246 پرسن اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو باوجود کہ اس کے کہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے اور ریٹن معاہدہ بھی ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے حملے کر کے تو اتنے 110 شہید بھی ہو گئے اور زخمی بھی ہو گئے، جو آپ کو ٹوٹل بتایا گیا ہے۔ تو اب ان کے قیدیوں کی بھی رہائی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو کچھ ہی دنوں میں مکمل ہو جائے گی۔ پہلے انہوں نے 1000 قیدی کہے تھے کہ اس میں 1000 قیدی ہم ٹرانسفر کریں گے، تو اللہ کرے یہ سارا کام اس طریقے سے ہو جائے۔ اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ جو امدادی سامان ہے، ان کی ہیلپ کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بھیجنی شروع ہو گئی ہے دوسرے ملکوں سے، جو آنی تھی وہ امداد شروع ہو گئی ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے نا۔ تو جنگ میں جو لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں، اور ایک تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ٹرمپ کے سر جاتا ہے کہ اس نے یہ کام واقعی اسی نے کروایا ہے، اپنے اوتھ لینے سے پہلے یہ کام کروا لیا ہے۔ یہ بہت بڑا کام تھا، دو ملکوں کی جنگ جو ہونی ہے اس کو ختم کرنا نا۔ تو ایک تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا، اور دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرمپ کی اب ہے 20 کو اوتھ ہے، جس کی بہت زیادہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، بلکہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا کہ آؤٹ ڈور کے بجائے انڈور رکھا جائے۔ آپ کو تھوڑی سی میں تفصیل بتا دیتی ہوں کہ کیا تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سارا رینج جو ہے وہ انڈور رکھا جا رہا ہے، اور یہ گارڈین کی رپورٹ ہے جو میں آپ کو اس میں بتا رہی ہوں کہ اس میں 2 بلڈنگز کو انوالو کیا گیا ہے مہمانوں کو بٹھانے کے لیے۔ ایک ہے کیپٹل ہل رٹونا کے نام سے رٹونا، اور دوسرا ہے کیپٹل 1 رینا، جس میں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان آئے تھے، اور عمران خان نے وہاں پر پاکستانیوں سے ایک اسپیچ بھی کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جی میں پاکستان جا کر تو نواز شریف کا اے سی بند کروں گا، جو کہ عمران خان نے نہیں کیا تھا۔ وہ ایک آپ کو پتہ ہی نرم دل انسان ہے وہ نا۔ تو یہ 2 بلڈنگز میں ارینج کیا گیا ہے، اور جو ہے کیپٹل ہل ریٹونا اس میں ہے 600 بندے بیٹھ سکتے ہیں، لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس میں، اس کی جو کیپیسٹی ہے۔ اور جو کیپٹل 1 ارینا ہے اس میں 2000 جو ہے وہ 20,000 لوگ جو ہیں وہ اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو ٹکٹس دی گئی ہیں وہ ہیں 2,20,000 جو ٹکٹ سیل ہوئی ہیں، اور ایک ٹکٹ جو ہے وہ 1 ملین سے لے کے $5 ملین تک کی گئی ہے، جس میں کہ حیرانگی بھی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ جس کو چاہے عزت دے، اور کچھ لوگوں کی کتنی عزت اور اہمیت ہوتی ہے کہ اس میں جو لوگ خالی شیک ہینڈ کرنے والے لوگ ہیں، یا ٹرمپ کے ساتھ جو پکچر کھنچوائیں گے وہ اتنی مہنگی ٹکٹس لے کر آئیں گے، اور یہاں جو خاص اس کے ساتھ ڈنر کریں گے بیٹھ کر، تو وہ 5 ملین تک کی ہے ٹکٹس جو کہ سیل ہوئی ہیں۔ اب لوگ زیادہ ہیں، اور وہاں پر 2 بلڈنگز میں ارینج جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ اس میں
2,20,000 लोग बैठ सके। अब वो देखें अरेंज कुछ कर रहे हैं कि अब क्या करते हैं कि किस तरह इतने लोगों को उसमें बिठाया जाए, या फिर कुछ टिकट्स वापस की जाएं। तो लोग बहुत बहुत दूर से भी आए हैं और बहुत ट्रैवल करके भी आए हैं, जहाज़ भी बुक करवाए हैं उन्होंने। इवन के कई लोगों ने तो अपने नए ड्रेसेस खरीदा, ड्रेसेस खरीदा तो इतनी बड़ी बात है, वो तो हर आदमी ने, तो औरतों का तो ज़्यादा काम होता है कि किसी भी नए फंक्शन पे जाए तो नया ड्रेस होना चाहिए। बीच में हम सब शामिल हैं इसमें। तो नए ड्रेसेस बनवाए हैं, फिर उसके बाद अपने बाल शाल डाई करवाए हैं, आदमियों ने भी करवाए हैं कि ट्रम्प से मिलना है। तो वो जो मैं पहले बात कर रही थी कि देखिए अल्लाह पाक जिसको चाहे इतनी इज्जत है ट्रम्प को मिलने के लिए, क्योंकि यूएस का वो प्रेसिडेंट है और दूसरी दफ़ा आया है, और उसके लिए इतनी तैयारी की गई है। लोग जहाज़ बुक करवा कर आए हैं, बहुत लंबे सफ़र करके आए हैं, बहुत बहुत होटल्स में ठहर रहे हैं, सारे होटल्स बुक हैं। तो उनको पिक ड्रॉप के लिए पहले ट्रांसपोर्ट बुक है। तो इस तरह का सारा ये सिलसिला अरेंज किया जा रहा है। कुछ तो ट्रम्प के डोनर्स हैं जो कि उसके, वो तो उसके मेहमान होंगे जो बहुत बहुत डोनेशन देते रहे हैं। फिर उसके बाद जो उसने मेहमान इनवाइट खुद किए हैं वो लोग हैं, उनके लिए तो टिकट्स नहीं है खैर। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो जिन्होंने टिकट्स खरीदी हैं, जैसे अब बिलावल के बारे में कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है वो कोई भी ऐसी पाकिस्तान की नहीं इंफॉर्मेशन आई कि उसको इनविटेशन किया है, तो ऑफ कोर्स वो और मोहसन नकवी टिकट बाई करके आए हैं। खैर उन्होंने कौन सी जेब में से दिए, पाकिस्तान के ख़जाने में से ही पैसे गए हैं। तो सॉरी, फिर वो यहाँ पर आए हैं और महंगे महंगे होटलों में ठहरे हुए हैं, जो कि जाके बिल जो है वो तो पाकिस्तान को दिया जाएगा और पाकिस्तान के लोगों के टैक्स पेयर के पैसों में से इस्तेमाल होगा। तो मैं ये थोड़े सा आपको उसकी तैयारी बता रही थी कि इस तरह की तैयारी है उसकी। और जैसे ही वो ओथ लेगा तो उसके बाद वो एग्जेक्टिव 100 ऑर्डर्स जो हैं उसके ऊपर साइन करेगा वो। अब जो 100 ऑर्डर्स साइन करेगा उसमें सबसे पहला ऑर्डर जो है, जो कि है भी ख़तरनाक ऑर्डर है, वो है जो कि इस कंट्री में इलीगल लोग बैठे हुए हैं, फेक तरीके से आए हुए हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके। फिर उसके बाद आपको पहले भी बताया था कि मुल्क बदरी के लिए इनकी टीमें तैयार हो चुकी हुई हैं, जो कि मंगल यानी कि ट्यूसडे वाले दिन से, ये बहुत अहम और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपको दे रही हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और फिर शानी की भी न्यूज़ है। काफ़ी सारी फैमिलीज़ लोग इसमें अपसेट होंगे जो कि मुख्तलिफ़ कंट्री से आए हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर मैक्सिको के लोग हैं। ये तो मैंने भी देखा था कि टेक्सास और मैक्सिको का जो बॉर्डर था वो बिल्कुल आप बड़े आराम से पैदल चले जाते हैं वहाँ पर, और वहीं से आ भी जाते हैं, जो कि इसने एक टाइम में दीवार बनवानी शुरू की थी जो कि बाइडन ने रोक दी थी। तो मैक्सिको के बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं। इवन के वहाँ से वो जो एक केनाल सी बहती है पानी, उसमें से भी क्रॉस करके लोग पैदल भी आ जाते हैं। तो वो सारी जो है मंडे सॉरी ट्यूसडे वाले दिन से टीमें जो हैं वो पहले अरेंज है, बस इसने साइन एग्जैक्ट ऑर्डर पर ओथ के बाद साइन करने हैं। और फिर वो खामोशी से उन्होंने पहले टारगेट बनाया हुआ है, उनको सब कुछ पहले मालूम है इंटेलिजेंस को कि कौन से लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। वो वहाँ से जाकर उनको पकड़ कर रिपोर्ट कर देंगे। तो मेरी जो जो भी ये सुन रहा है और वो अपना लिए बेहतर कुछ रास्ता जो भी अपने लिए सेफ साइड का कर सकता है वो कर ले। तो मैंने कहा ये मैं आपको खुल के बता दूं कि इसमें आप ये ना बैठिएगा कि अभी हम यहाँ चले गए, यहाँ पता नहीं कब आदि आती है क्या होता है, नहीं। ट्यूसडे वाले दिन से फौरी तौर पर ये काम शुरू हो जाएगा, उनकी टीमें आएंगी और वो पकड़ कर और कुछ नहीं सुनेंगे, रिपोर्ट कर देंगे जो इन्होंने अरेंज किया हुआ है। एक तो ये आपको अच्छी खबर तो खैर नहीं है, बहुत सारे लोग बेचारे परेशान होंगे, बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकेंगे उनके, जो कि अभी जा रहे थे।
تو بہت ساروں کی جابس خراب ہوں گی اور ملک در بدر ہوں گے. خیر اللہ پاک سب کا مالک ہے. تو یہ میں کہا ایک تو آپ کو یہ میں نیوز دوں، اور دوسری جو اس کی تیاریاں ہیں وہ بڑی زبردست زور و شور سے ہو رہی ہیں. تو ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کو نیکسٹ جو 72 آورس ہیں ابھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں جیسے ہی ٹرمپ آئے گا بہت سارا کچھ چینج ہوگا، ایون کہ پاکستان کے لیے بھی چینج ہوگا. تو اس کو سب کچھ پتا ہے ٹرمپ کو کہ کون کون سی کنٹریز اور کون کیا کیا کر رہی ہے. یہاں کی ISI جو کہہ لیجیے، FBI کہہ لیجیے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور بہت زیادہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں. تو عمران خان کے بارے میں بھی خیر ابھی اس کے اوپر آتے ہیں. پہلے ہم تھوڑی سی انٹرنیشنل اور ایک دو نیوز دے لوں، پھر اس کے بعد ڈومیسٹک پر بھی آتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو تہران ہے ایران کا شہر، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے جو 2 ججز ہیں انہوں نے جب ڈیسیژن دیا وہ کورٹ سے باہر آئے تو ان کو گولی مار دی گئی. وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک زخمی ہو گیا. ظاہر اس نے فیصلے غلط کیے ہوں گے اور جن کے کیے ہیں ان کو غصہ آیا ہوگا، انہوں نے اس کو مار دیا. تو ہمارے پاکستان میں دیکھیں عمران خان کا کس طرح کا انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے، اور جج جو ناصر ہے خیر اس کا بھی حشر تو ہوگا ہی، اس کا بھی برا اللہ نے چاہا تو. لیکن پیچھے کروانے والے ہمیشہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. خالی جج اپنا فیصلہ نہیں دیتا، اس کے پیچھے ہمیشہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. خیر اس کے اوپر آتے ہیں. ابھی میں آپ کو پہلے انٹرنیشنل نیوز دے دوں، پھر وہ گھوم گھما کر ہم عمران خان کے اوپر ہی جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک لمٹ سے زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ پرسنل ہو کر ہو رہی ہے، یہ جو ہونی نہیں چاہیے. کنٹری وائز نہیں ہونی چاہیے. ڈیموکریٹک کنٹریز میں ایسے نہیں ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، کیونکہ سارے ان پڑھ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں نا اصل میں، اس لیے ہو رہا ہے. چور بیٹھے ہوئے، جاہل ان پڑھ بیٹھے ہوئے. الیکشن کسی کا بیٹھا کوئی اور ہوا ہے، تو سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ میں کہا یہ آپ کو میں تھوڑی سی نیوز تھی جو کہ دوں. اور پھر اس کے بعد ایلن مسک نے ایک اپنا وہ بھیجا ہے بہت بڑا، اردو میں کیا کہتے ہیں، بیڑا اور طاقتور راکٹ ایکس کے لیے، جو کہ اس نے سیکنڈ ٹائم بھیجا ہے، لیکن وہ ابھی کامیاب نہیں ہوا. اسٹار شپ کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ بھی سکسیسفل نہیں ہوا. اور جس کام کے لیے گیا تھا وہ بھی نہیں ہوا. اب دیکھیں پھر شاید مے بی تھرڈ ٹائم وہ ٹرائی کرے گا تو صحیح. وہ آزمائشی پرواز تھی یہ. تو لاس اینجلس کے بارے میں ایسا ہے کہ اس کی آگ ابھی کمپلیٹ ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی اس کی آگ ہے، جاری ہے. اور پاسبل ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ دوسری اور جگہوں کو بھی انوالو کر دے، کیونکہ گھر جو ہیں وہ لکڑیوں کے ایکچولی بنے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر یہاں پر. اور ویسے بھی جنگل ہر جگہ لکڑی ہوتی، تو لکڑی کو آگ کو جلدی کیچ کر لیتی ہے. اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس سے بھی آگ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ایک لکڑی سے دوسری لکڑی کو جلدی لگ جاتی ہے. تو ابھی تک اس کی آگ ختم نہیں ہوئی. اور یہ تھا. اور دوسرا بائیڈن نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ میرے خیال سے بہت اچھی ہے اور سمجھنے والی ہے باقیوں کو بھی. اس نے اپنے جاتے جاتے فوج کو کہا ہے، US کی فوج کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے حلف لیا ہوا ہے، تو حلف وفاداری لیا ہوا ہے، تو اپنے اس ملک کے لیے تو اس کا خیال رکھا جائے، اپنے حلف کا، اور اسی طرح کے کام کیے جائیں جو حلف اٹھاتے وقت کہا جاتا ہے. تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ جو لوگ اپنے کنٹری سے سنسیئر ہیں وہ جاتے جاتے بھی ان کو فکر ہوتا ہے. اور اس نے کتنی اچھی بات کی کہ اپنی کنٹری کے لیے جو حلف لیا اس کی وفاداری کی جائے. تو میرے خیال سے پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے. جب حلف لیتے ہیں، ججز لیتے ہیں، آرمی والے لیتے ہیں، باقی بھی سب لیتے ہیں. اور یہ تو کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں اس کنٹری کے لیے. تو حلف لینے کے بعد بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، اپنی پرسنل ذاتی دشمنیاں لے کر اور کروایا جا رہا ہے.
गलत लोगों को बिठाया गया है, अनपढ़ लोगों को बिठाया गया है, चोरों को बिठाया गया है, इलेक्शन किसी ने जीता है, बैठा कोई हुआ है, कर कुछ रहे हैं। तो किस चीज़ का आप लोग हेल्प लेते हैं? देखें बाइडन कितनी अच्छी स्टेटमेंट देकर गया अपनी आर्मी को ना। तो इन चीज़ों से कुछ सीखना और समझना ही चाहिए कम अज़ कम। खैर एक तो ये थी थोड़ी सी न्यूज़ जो मैं आपको दूं। और अभी हम चलते हैं डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ। डोमेस्टिक न्यूज़ में अल कादर यूनिवर्सिटी का जो जज ने, खाली जज को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए कि खाली जज तो खैर है ही है, पाकिस्तान के जजेस तो बिके ही हुए हैं ना, उनका नंबर आप देखें कहाँ पर आता है ना। तो उसने जो डिसीजन किया नहीं, उससे करवाया गया है, उसके पीछे कोई और है, आप लोगों को भी मालूम है और बाकी कौम भी सारी समझ रही, क्योंकि कौम में अब अवेयरनेस आ चुकी है, अल्लाह का ये शुक्र है कि आइंदा जो जनरेशन तैयार हो रही है या होगी, या जो नेक्स्ट जिन लोगों को वोट के जरिए तो खैर पाकिस्तान में कोई आता ही नहीं है, वहाँ पर तो आर्मी हुकूमत करती है, पहले भी कर रही थी, अब भी कर रही है। तो जिस तरह के बाहर सारा इंटरनेशनली उनका रिस्पांस दिया गया है यहाँ पर अल कादर यूनिवर्सिटी के सिलसिले में, जो इमरान खान और उसकी बेकसूर बीवी बुशरा बीवी को सज़ा दी गई है, वो बहुत ज़्यादा लोगों पे गुस्सा है, बहुत गम है, और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की हुकूमत पे जो लोग बैठे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत ख्यालात रखने लग गए हैं, और गलत इमेज किया है पाकिस्तान का, बहुत ज़्यादा गलत इमेज किया है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान और पीछे जाता जा रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, मुल्क तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। जाहिर है लोग जो ऐसे बैठे हैं तो पीछे ही जाएगा। तो दूसरा मेरा ख्याल है कि अभी वो कह रही थी, मैंने सुन रही थी कि मरियम सफदर ने स्कूलों को भी कहा है कि उनको प्राइवेटाइज किया है। अब प्राइवेटाइज 17,000 स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया है, उसके सेक्टर में दे दिया प्राइवेटाइज करने के लिए। अब बताएं जो प्राइवेटाइज करेगा उनके घरों में रोटी तो है नहीं खाने को, बेचारे गरीब मर रहे हैं, तो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की फीसें कहाँ से देनी? वो तो और बेचारे नालायक हो जाएंगे तालीम के बगैर, खुद तो पढ़े नहीं, उनको बाकियों को पढ़ने नहीं दे रहे। कम अज कम जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे थे, चले वहां पर भी कि स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन चले अलिफ बे पे कुछ तो सीख रहे थे, वो उर्दू ही लिखनी पढ़नी सीख रहे थे कम अज कम, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों की तो फीस नहीं पे कर सकते ना। प्राइवेट स्कूलों की तो वहां पर लाखों में फीसें जा रही हैं, तो वो और उनको प्राइवेट सेक्टर में देने से वो तो बेचारे नालायक रह गए। और ऊपर से अल कादर यूनिवर्सिटी, जो कि सबको पता है इमरान खान का बनाया हुआ है ये यूनिवर्सिटी, और कोई पैसा उसने नहीं खाया हुआ, तो वहां पर भी स्टूडेंट परेशान हो गए हैं। बहुत सख्त उनका शदीद रद्द अमल है, वो बहुत अपसेट हो गए अपनी तालीम की वजह से ना। कम अज कम तालीम के मेयार को तो नहीं छेड़ना चाहिए, तालीम से ही नस्लें बनती हैं, इंसान इंसान बनता है। ये वो इंसान सोचता है जो खुद तालीम याफ्ता हो, उसको तालीम की कदर का पता होता है कि इसकी क्या वैल्यू है एजुकेशन की। तो एक तो ये आपको बताना था। दूसरा आपको मैं पहले आपको खबर दी थी मैंने, कोई 2 वीक्स बिफोर मैंने आपको, कोई अगर मेरे व्लॉग्स चेक करें उस पर मैंने आपको बताया था बाइडिंग रेजोल्यूशन का। बाइडिंग रेजोल्यूशन पर आने से पहले मैं एक बात भूल जाऊंगी कि मैं इमरान खान साहब को कहती हूँ कि अगर कोई सुन रहा है तो उन तक मेरी बात पहुँचाए कि आप अपना ये मुकदमा अल कादर पहले भी बड़े गलत मुकदमे उन पर हुए हैं, लेकिन अल कादर यूनिवर्सिटी का जो है वो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएं, ये वहाँ पर डिसीजन होगा इसका, तो फिर सारी दुनिया देखेगी कि इसका क्या फैसला होता है। सारा रैकेट्स उनके सामने रखा जाए, सारा अकाउंट्स, बैंक बैलेंस, कैसे ट्रांजैक्शन हुई, क्यों हुई, किसने करवाई, किसने 9 लाख का इजाफा
पैसे लिए और क्यों लिए गए और किसके थ्रू हुए, ये सारा रेकॉर्ड्स वहाँ रखा जाए और वहाँ पर मुकदमा किया जाए इंटरनेशनल कोर्ट में, फिर वहाँ से डिसीजन आएगा, फिर दुनिया को पता चलेगा। तो ये थोड़ी सी हिम्मत करें और वहाँ पर अपना मुकदमा पेश किया जाए। ज़ाहिर है दुनिया में बनी हुई है इंटरनेशनल कोर्ट, मैंने खुद इसके ऊपर बाकायदा एक पेपर दिया हुआ अपने मास्टर्स में। तो अगर पाकिस्तान की अदालतें नहीं सही काम कर पा रही, अभी आपको मैंने अभी इससे पहले आपको 2 मिनट पहले बताया कि तेहरान के 2 जजेस ने जो फैसले किए, जब वो बाहर निकले हैं तो उनको गोली मार दी गई। तो अगर आपके यहाँ पर नहीं डिसीजन सही हो रहे हैं, तो क्योंकि बिकी हुई अदालतें हमारी बिकी हुई, चंद एक ऐसे जजेस हैं जो सही हैं, आप दिलावर को देख लें, फारूक को देख लें, इसको नासिर को भी आप देख लें, इस तरह के ये लोग सारे ये बिकाऊ माल बैठा हुआ है सारा। तो ये मैंने थोड़ा सा मशवरा देना था अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। तो तीसरा मैंने आपको ये बताना था कि जो बाइडिंग रेजोल्यूशन का मैंने आपको तकरीबन को 2 वीक्स पहले मैंने आपको बताया था कि ये आ रहा है, इसके सिलसिले में बाइडेन के ही टाइम में एक दफ़ा भी पहले इसकी हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी इस सिलसिले में। अब ये दूसरी मीटिंग हुई थी, तो इसमें इन लोगों ने जो कुछ चीज़ें तय की हैं उसका रिज़ल्ट अब आने वाला है। आप 2-3 हफ्ते तक देखेंगे कि उसमें जो क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ बताई गई है कि कौन कौन सी कंट्री से कौन कौन से ज़्यादा करप्ट लोग हैं और उन्होंने बाहर सारे यहाँ पर किस तरह पैसा ला के रखा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सारे बैंकों में, हर चीज़ का एक रिजल्ट, हर चीज़ का डाटा मौजूद है यहाँ पर ना। और वो कौन लोग हैं और किस तरह पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की गई है ना, और किस किस ने कैसे प्रॉपर्टीज बनाई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल वैसे है तो काफ़ी सारे लोग, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, लेकिन एक एग्जांपल दे देती हूँ, बाजवा ही है कम बहुत, उसी की मिसाल दे देती हूँ। या वो डोनट्स वाला क्या नाम है उसका, फायजी सा है, मोहसन नकवी, और भी काफ़ी सारी दुनिया है, पाकिस्तान के लोग हैं। तो वो सारा डाटा तो यहाँ पर मौजूद है। तो वो जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन हो रहा है उसमें ये आ रहा है कि उनके ऊपर एक तो सफरी पाबंदियाँ लग जाएंगी और दूसरा उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज किए जाएंगे, जैसे नवाज शरीफ ने एक टाइम में किए थे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी पैसा गया था। तो इस तरह के उन लोगों के डॉलर अकाउंट जो है वो फ्रीज किए जाएंगे, उनके ऊपर सफरी पाबंदियां भी लगेंगी। ट्रम्प को हर बात का पता है, ट्रम्प को ओवरसीज जाकर अपनी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को हर चीज़ बता रहे हैं, रिटर्न बता रहे हैं, उसके ऑफिस में हर चीज़ मौजूद है। और जैसे ही उसने ओथ लेनी है, उसने 100 उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पास करने हैं, जिसमें नंबर 1, इस मुल्क में जो लोग इलीगल आए हुए हैं, फेक तरीके से बैठे हुए हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं और बॉर्डर्स क्रॉस करके आए हुए हैं, जहाँ शिप से आए हुए हैं, जिस तरह मर्जी हैं गलत तरीके से, उसने सारों को मंगल वाले दिन से इन लोगों को यहाँ से रुखसत करना है और डिपोर्ट करना है। उसकी तो वो तो तैयारी कर ले। बाकी बाइडिंग रेजोल्यूशन का भी होगा और ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, कि गलत तरीके से मुल्क का पैसा लूट कर, खजानों से निकाल के, मनी लॉन्ड्रिंग करके और यहाँ पर पहुंचाया गया है और प्रॉपर्टियां बाई की गई हैं। उनसे पूछा जाएगा ये प्रॉपर्टियां कैसे बाई की हैं, कहाँ से पैसा आया, कितना टैक्स दिया, वहां पर दिया या यहाँ पर भी दिया है, हर चीज़ को सामने होगा और फिर उसको ये लोग उसको करेंगे, बाउंड कर देंगे। तो ये मैंने कहा आपको, मैं चंद थोड़ी सी न्यूज़ थी ये मैं आपको दे दूं। और बाकी कल कल है 9, आज है 19, कल के बाद 20 के बाद यहाँ के भी हालात चेंज हो जाएंगे, यहाँ की हुकूमत चेंज हो जाएगी, यहाँ के सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी चेंज हो जाएगी। और ट्रम्प ने आकर यहाँ पर जो भी इतनी महंगाई हुई है, इसके ऊपर भी यहाँ पर भी बहुत महंगाई हुई है, लेकिन यहाँ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो उसके ऊपर भी सारा कंट्रोल करना है और बाकी ओवरऑल दुनिया पर भी।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं बताऊंगी, लेकिन मैं बड़ी आपको अहम और सही न्यूज़ बड़ी स्टडी करने के बाद देती हूँ। कोई मैं ऐसे ही बैठ नहीं जाती हूँ, बैठ के फिर दो चार लफ्ज़ बोले और चली गई, बाकी व्लॉग्स कर दिया। नो, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल ट्रू न्यूज़ देती हूँ और बताती हूँ। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।